Good afternoon, all. Now onwards, when you join the class, your first task is to write your enrollment number into the chat box. Okay. So we'll continue from the last class what we were discussing. Now onwards, we'll cover some programming concept also. And for this period of time, we'll discuss some problems. Then we'll move towards the programming concept also. So first of all, let us discuss a few conceptual questions. And the way I have, given the solution for a particular problem, I'm continuing in that direction. Okay. So slide is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now this is the first question. I do few fast forward questions to check your concepts. So this is the first question. I have mentioned the 7 steps. Now, the question is you are following the 7 steps and have just generalized your steps. So, what do you do next? Give answers in chat box, or if somebody can explain, can raise hand and give answer. So, what should be the next step after that? We are following the 7 steps. I hope you all are remembered those 7 steps. So, you have reached the generalization. So, what we should do now? Anyone? Anyone? Yes, Umar, Yashaswini, Rahul. If we are, generalized it, it means we have completed 1 and 2 steps. So what we need to do further? Sentu, Yes, what sir. should be the step after generalization? To sir, to algorithm for it, sir. इसके लिए सर एल्गोरिथम हम लोग ही करेंगे। जनरलाइज में बाद हर वैल्यू के लिए हम लोग चेक करेंगे क्या हर वैल्यू के लिए Pranjal? ट्रू है कि No, no, फॉल्स है। this is wrong. We'll do translation. Pranjal? Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes. So what is the answer? I think so. Work an example by hand. I just thought to ask questions and go in right way because you people are giving all wrong answers for this. It means you people have not remembered those 7 steps. Just read out question once more. You are following the 7 steps and have just generalized your steps. What do you do next? Pooja, Sir will translate the algorithm to code. we'll do testing. All of you have not taken it right. It was the fourth one. Just again recall. Just first we have taken one instance, then we'll write down what we have just done, then we have just generalized the thing, then we have tested, then we will move further for translating our algorithm into code, then we'll debug and check whether the algorithm is giving right answer or not.
I hope you will now understood. The answer is 3. We have to test after generalization. Anyways, question number 2. Now question number is 2. If you are not doing step 1, if you are doing step 1, working with an example by hand, and you find it difficult or you stuck, which of the following two could be the problems? आप स्टेप 1 पे अटक गए, ऐसा क्यों हो सकता है? What are the possible reasons for that? Anyone? Sir, lack of domain knowledge. Okay, anything else? It is right. You are not having the domain knowledge. And I've asked two of the following. Hard to generalize. And the problem is very hard to ये आंसर कौन कौन ने दिया है? The problem is hard to generalize. प्रॉब्लम 3 आंसर जिन जिन ने दिया है, प्रांजल ने दिया है, राहुल ने दिया है, उमर ने दिया है, 4 तो है, डेफिनेटली 4 तो आंसर ठीक है. रेज हैंड किसका है? आकाश. यस यस आकाश. यस आकाश. Now again, you people are not able to recall the things. Now you need to understand what is your step first. Step first, problem in your hand, and you are just trying to solve one instance of problem. आप तो पहली स्टेप में अटक गए. इसका मतलब लेक ऑफ डोमेन नॉलेज. ओके, जैसे मैं एक नंबर्स दूं, n नंबर्स, और कहूं कि फाइंड आउट द मैजिक नंबर्स. क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो मैंने बोला? मैंने आपको 10 नंबर दिए और कहा फाइंड आउट द मैजिक नंबर अमंग दीज 10 numbers. So anybody can write the program for that? Anybody? Just speak up. जो बता सकता है, speak up. Suppose मैंने 1 से 100 के बीच 10 numbers दिए and my question is to find out what is the magic number. Then okay, उमर है? सर नहीं लिख सकते हैं. सर नहीं लिख सकते. आपने ये थोड़ी बताया कि बस मैजिक नंबर क्या होता है. प्रॉब्लम बस तो स्टेटमेंट ही अच्छे से ये जो मयंक आपने डिफाइन बोला, नहीं है. ये कौन से ऑप्शन में दिया है ये बात? ये दिया है सर सेकंड सेकंड में. में. तो हमें जस्ट थ्योरी को थ्योरी की तरह नहीं, हमें समझना है कोई भी बात है तो. पर आप देखो स्टेप 1 क्या थी हमारी? जो प्रॉब्लम इन हैंड है उसको लेके इंस्टेंस के साथ सॉल्व कर रहे हैं. नंबर 2 में जो 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 हमने लॉजिक लिख लिया, जिस तरह से हमने वो बताया कि ये पहला इंस्टेंस सॉल्व हो गया, उसकी मैथमेटिक्स, उसकी टेबल, उसका लॉजिक हमने लिख लिया. फिर स्टेप 3 में हम उसे जनरलाइज करते हैं, स्टेप 4 में उसे टेस्ट करते हैं, फिर स्टेप 5 में उसे ट्रांसलेट करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. जैसे ये एग्जांपल, बहुत परफेक्ट एग्जांपल दिया मयंक आपने. अब मैजिक नंबर तो मैं बता रहा हूँ ना, आपको क्या पता मैजिक नंबर क्या है? हाउ यू एबल टू फाइंड आउट दैट? सो द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 and 4. जितने लोगों ने ये बोला ना द प्रॉब्लम इज हार्ड टू जनरलाइज, ये ना अपनी ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम में हम कह देंगे नहीं समझ में आ रहा मतलब प्रॉब्लम हार्ड है. नहीं समझ में आ रहा ये भी तो है कि प्रॉब्लम प्रॉपरली डिफाइन नहीं है. और दूसरा लैक ऑफ नॉलेज. जैसे ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ये डोमेन नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं परफेक्ट नंबर क्या होता है, व्हाट इज परफेक्ट नंबर? If I will ask you what is Armstrong number? Anybody? What is Armstrong number? Anybody who can answer this? What is Armstrong number? Sir, for example, 121 and 131, these are Armstrong numbers. No, 131, 121 Armstrong number है. कैसे? So what is the definition of Armstrong number? Sir, ये बेटा पैलिंड्रोम है. reverse of a number is called Armstrong number. हाँ, नंबर की डिजिट के क्यूब का सम अगर वो नंबर है,
then only we can say the number is Armstrong number. नंबर की डिजिट की क्यूब का सम 153, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब Yes. 125, 9, 3 का क्यूब 9. ठीक है? So in this way. So the point is, unless you know this, you're not able to code for that. Okay? Anyway, I've just taken these questions and I found you people are not getting it. So try to recall the things. Now, see this question number 3. आप 1 और 2 पे तो चले गए. You have completed 1 and 2 and you have reached to 3. And you find it difficult to generalize. So what you will do? ऐसा ही हमारे साथ पिछली प्रॉब्लम्स में हो रहा था. What you will able to do if you are not able to generalize? सर फिर से बैक जाएंगे और दोनों स्टेप्स को रिकॉल करेंगे, कहीं हमने कहीं गलती तो नहीं करी. गलती की तो यहाँ बात ही नहीं होती. जनरलाइजेशन में अगर हमें वो लग रहा है तो मतलब वही सर कि हमने कहीं गलत तो ये नहीं कर लिया, जनरलाइज नहीं कर लिया. मतलब हम पैटर्न नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं. ऐसा होता है. यस और यस इसका कोई 4 एग्जांपल नंबर दे है. मैं, अपन ने जो इतने दिन से प्रॉब्लम करी है, ऐसा हुआ ना जहाँ पे हम फंस गए इस चीज में. यस सर. वो जो पैटर्न वाले क्वेश्चन थे ना, स्क्वायर को कलर करने वाले, हमने देखा एन की वैल्यू हमने कुछ ली तो हमें पैटर्न ही नहीं मिला. हम 2 स्टेप आगे लेके गए और हमें पैटर्न नहीं मिला, तो हमने क्या करा, वापस आए और नए इंस्टेंस के लिए हमने रिपीट करा. किसको? उसी दोनों स्टेप्स को. तो हमें पता चला. इसका 3 आंसर क्यों बताया मोहित? यशस्विनी, इसका आंसर 3 कैसे होगा बेटा? सर बिकॉज जो हाँ मोहित. सर मतलब जिस पैटर्न से वो बना है उसी को हम और भी एक्सप्लोर करें तो हमें उस बारे में और भी पता चल सकता है. तो आपने आंसर 3 क्यों दिया मोहित? सर मतलब जो हमें कोई मतलब जो ये प्रॉब्लम मिली है वो हाँ. किस डोमेन से है, नो डियर. इसलिए उसके सोर्स और डोमेन अगर हम पता कर ले तो हम उसका पैटर्न को क्रैक कर पाएंगे नहीं और डियर. फिर सॉल्व अब करना इसको इजी होगा. चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक बार फिर समझ लो. आप एक बात समझो, आपने इसका मतलब क्या हुआ. आपने बोला कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आपने सीधे मुझे मैसेज कर दिया, सर इसको सॉल्व कर दो. मैं तो 2 स्टेप पे कर पा रहा हूँ. पॉइंट क्या था, आप पहली स्टेप कर चुके, आप सेकंड स्टेप कर चुके. अगर आपको जनरलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो न्यू इंस्टेंस के लिए आप रिपीट करो 1 और 2 को. और 1 और 2 क्या थी? कोई प्रॉब्लम इंस्टेंस लो और जैसे उससे आंसर पे पहुंच रहे हो, उस इंस्टेंस को पूरा सॉल्व कर रहे हो, उस स्टेप्स को लिख लो. तो जब हम ये मल्टीपल टाइम्स करेंगे, हमने यही क्यूब्स के क्वेश्चंस में किया है. एंड मेरा सोचना था कि शायद हम एक बार स्टेप को, मैं तो इसे 1 मिनट में फिनिश करने वाला था. इसका मतलब हम चीजों को नहीं समझे. समझने वाली बात यह है कि गिवन प्रॉब्लम के लिए हम एक इंस्टेंस लेके सॉल्व करें, फिर जो हमने किया है, जो हमें गिवन है आंसर, उसकी जो जो मैथमेटिक्स हमें देख के समझ में आई कि इवन है ऑड है ये वो लिखें. फिर हम उसको जनरलाइज करने की कोशिश करें. अगर हम जनरलाइज नहीं कर पा रहे तो हमें और इंस्टेंस सॉल्व करने पड़ेंगे. कई बार हम 1 और 2 इंस्टेंस में आके कंफर्म नहीं हो पाते कि इवन ऑड का केस है, कि ये सीरीज बन रही है, कि क्या हो रहा है. सो दैट्स व्हाई दीस 7 स्टेप्स, आउट ऑफ दो 7 स्टेप्स 4 स्टेप्स आर मोर इंपॉर्टेंट. मैंने शुरू से आपको रिपीट कर रहा हूं कि टिल वी हैव नॉट डेवलप्ड द प्रॉपर एल्गोरिथम, थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. देन रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कोडिंग पार्ट. यू हैव टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू द you have to translate the algorithm into the code. Okay, so this was the question number 3. आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं, और वो है अभी तक मैं आपको क्या देता था, इस तरह के क्वेश्चंस देता था. कल की क्लास में देखा था ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन किया था ना. नाउ द पॉइंट इज, now you have to learn to read the program, algorithms or logic. Unless you are not able to read it properly, you are not able to write it. The same way we have learned to understand the code properly, then we'll be able to write it properly. तो हमको लॉजिक जो है उसको समझना आना चाहिए अगर गिवन वो है, और फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा उसको लिखना. तो सेम वे फॉर प्रोग्राम ऑल्सो, इट इज बेटर टू रीड फर्स्ट properly, then you will be able to write it.
नाउ मेरा क्वेश्चन क्या है, ये हमने कल सॉल्व किया था पैटर्न. नाउ माय क्वेश्चन इज फॉर दिस पैटर्न, फॉर दिस पैटर्न what I'm giving you, possible algorithm, and you have to find out which algorithm is correct for this. It means now you have to devise this. कल जो भी लॉजिक हमने बनाया था उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं. तो हमने कल इसको देख के हमने कल क्या देखा था. नाउ हु वांट टू गिव द आंसर कि कल हमने इसको अप्रोच कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हम. एनीवन हु कैन गिव मी द प्रोसीजर, इंटायर प्रोसीजर. कल ही किया है हमने ये. सपना, would you like to explain? Naveen? सर. यस. तो इस क्वेश्चन को लेके हमारे सॉल्यूशन का कल क्या लॉजिक था? फास्ट सर कल की क्लास, सर कल क्लास अटेंड नहीं की. मयंक? सर न्याय था यस. मोहित? सर, इसमें ये है कि सर जो n की वैल्यू अगर 0 होगी तो हाँ. पहले के लिए उसका n स्क्वायर आउटपुट होगा. ये कैसे पता चला? सर क्योंकि आउटपुट में कुछ भी नहीं है, इट मीन 0 होगा. ठीक है. सर तो कल आपने बताया था n स्क्वायर होगा इसके लिए. एन स्क्वायर होगा कि माइनस एन स्क्वायर था? माइनस एन स्क्वायर सर. पैटर्न को फॉलो करेंगे. एन इंटू माइनस एन है ना? यस सर, शायद. चलो, तो स्टेप को उमर ने लिख दिया है चैट बॉक्स में, बहुत सही लिखा है उमर ने. हमने ये करा कि हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म. नहीं, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ टर्म्स, या फर्स्ट टर्म देख लो फिर देख लो नंबर ऑफ टर्म्स, और इसी पैटर्न को फॉलो करो. ये हमने कल कर लिया था. तो देखो, 0 के सामने n 0 है तो आउटपुट में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 0 है. 1 के लिए नंबर ऑफ टर्म 3 है, 2 के लिए. ये हमने कल सॉल्व किया था. तो हमने क्या बोला था? 3n टर्म्स. सबसे पहले तो हमने क्या कहा था? 3n टर्म्स. उसके बाद हमने कहा था पहली टर्म क्या? पहली टर्म हमने बोली थी n इंटू माइनस एन, दैट इज माइनस एन स्क्वायर, है ना? और फिर हमने देखा था 1 3 5 7 9 टाइप से चीजें ऐड कर रहे हैं और ऐसे काम होता जा रहा है. ठीक है. नाउ आई एम गिविंग यू 4 पॉसिबल एल्गोरिथम्स फॉर दिस. आई एम गिविंग यू द 4 पॉसिबल एल्गोरिथम्स एंड यू हैव टू सी whatever you have understood with this. Just tell me कि इससे क्या आंसर आ रहा है. क्या ये है वो एल्गोरिथम फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम? This is the option 1. You can see this is the option 2. This is the option 3 and this is the option 4. अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्योंकि एक साथ 4 ऑप्शन सामने नहीं रख पाएंगे. ये जो है ना, काउंट 1 से 3n+1 लिखा है या 0 से 3n+1 लिखा है, एक अंतर ये है. और दूसरा अंतर है या तो 0 से या 1 से. दूसरा अंतर है x+2i - 1 या x+2i. तो अब आप चारों ऑप्शन को देख के समझ सकते हो कि मैं जो कह रहा हूं उसका क्या मतलब है. और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं एक ही के साथ ये पेस्ट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखती जाए चीजें. ना, ऑप्शन 1 2 3 4 में अंतर मैंने बता दिया. आई, ये जो है काउंट वो 0 से 3n+1 है या 1 से 3n+1 है, और दूसरा है ये 2i+1 - 1 x+2i है या x+2i है. ठीक है. नाउ ट्राई टू रीड दिस, टेक 4-5 मिनट्स. इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सामने जो लिखा है उसको क्या अंडरस्टूड कर रहे हो, क्योंकि आपने ये सॉल्व कर लिया. हमने कल ये प्रॉब्लम डिस्कस किया, हमने इसे कंप्लीटली सॉल्व कर लिया. वी ऑल हैव डन दिस. नाउ ट्राई टू मैथमेटाइज दैट. और अगर मैंने ये नहीं लिखा होता या ये नहीं दिया होता तो आपको इसी से देख के समझ में आना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या होगा. जो भी आप कह रहे थे -n/n, नॉन नेगेटिव इंटीजर n, तो n इनपुट हो गया. अब काउंट है 0 से 3n+1 या 1 से 3n+1, उसको i बोला. और उसके बाद जो अपडेट कर रहे हैं वैल्यू वो क्या है? x+2i - 1 है और x+2i है.
या एक्स प्लस टू आई माइनस वन या एक्स प्लस टू आई? जिसका आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, जो एक्सप्लेन करना चाहे वो बता सकता है। ये हमारा डिस्कस करा हुआ है। अब आपने क्या समझा है, ये सामने है सॉल्यूशन का लॉजिक, बस उस लॉजिक में थोड़ी सी मिस्टेक है। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, इसका मतलब उनमें से एक ऑप्शन सही है। तो आपको क्या समझ में आया? या इसमें से मैं कोई एक लाइन गायब कर दूंगा, आगे के प्रॉब्लम्स में ऐसा करा करूंगा कि बीच की एक लाइन गायब कर दूंगा या फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दूंगा। जैसे ये एक्स टू बी एक्स प्लस टू आई माइनस वन, इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूं तो ये क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल टाइप का बन गया। या तो मैंने ऑब्जेक्टिव बना दिया, 4 ऑप्शन दिए। एनीवन जो भी समझ में आया, जिसको जो भी समझ में आया इतनी चीजों में? यस इंदु। सर सेकंड केस में 0 to 3n सर, 3n plus 1 उसमें वैलिड होगा सर। अच्छा, और ये अब x की वैल्यू x प्लस टू आई x माइनस का वन वैल्यू एक्स प्लस टू आई? सर वो x plus 2i minus 1 सर, क्योंकि हम लोग 2 के वैल्यू में पुट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू आ जा रहा है सर 2 इंटू 2 प्लस सर x plus 2i minus 1 आएगा सर। टू आई माइनस एक्स प्लस टू आई माइनस वन आएगा। उमर आपने यस आंसर सर। किस लॉजिक से दिया उमर? ये एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, इसका मतलब तो देख लो। सर एक्सक्लूसिव लिखा है मतलब उसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस तो तो 3n 1 से लेके 3n तक चलेगा हमारा लूप। वन से तो उसमें 3 वन से ये वन से सर चलना चाहिए, ये वन से चलना इस चाहिए क्या? इस ऑप्शन में यस सर यस जो यस, आपके स्क्रीन पे visible बिल्कुल। है। तो मैंने आपसे ये दो चीजें कही, देखो दूसरे ऑप्शन में देखो 0 से 3n प्लस वन वाला भी ऑप्शन है, और नीचे x प्लस टू आई माइनस वन भी ऑप्शन है। मतलब अगर मैं इसी में बात करूं तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो ये है या इसी में स्लैश कर देता हूं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? x प्लस टू आई, ठीक है ना? ये दो ऑप्शन है। दो अंतर यहाँ पे आ रहे हैं वैल्यूज में, या फिर हमारी वैल्यूज में 0 से आ रही है, और या वैल्यू क्या आ रही है? 1 से, 1 से। है ना? ठीक। यस सर, जब हमें 3n एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं तब हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा लूप को, अगर एक्सक्लूसिव है तो। अगर इंक्लूसिव होता तो 1 से करते तो 3n एलिमेंट्स हमें मिल जाते। जीरो करने से और 1 करने से नीचे वैल्यू आउटपुट में क्या अंतर आ रहा है? किसी ने इसे डिराइव करा? टर्म नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो रही हैं। अगर इंक्लूसिव करेंगे तो 1 एक्स्ट्रा टर्म विल प्रिंट, अगर एक्सक्लूसिव करेंगे तो एक कम टर्म प्रिंट होगी। चलो पहले तो बाकी सब ये समझ लो कि जैसे इस तरह की चीज सामने आती है तो हमको थोड़ा सा है ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है, दिमाग में टेंशन होने लगता है ना, एम राइट? समझ में आना थोड़ा कम हो जाता है। यस और नो? अब पॉइंट समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। पॉइंट ये है कि जो मैंने स्टेप्स बोली ना, वही तो अपन सामने कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है आपको। मैंने आपसे बोला कि आप देखो पहली टर्म, यही था ना? देखो उसने क्या लिखा है, गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर n। हमने कहा सारी चीज n से डिसाइड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए इनपुट में क्या है, क्योंकि हमें एक कॉलम इनपुट तो गिवन होगा ना। जब इनपुट कॉलम गिवन होगा तो उसी इनपुट के हिसाब से आगे चलना है। For that given input column, now you can see, make a variable x and set it to minus n into n। मतलब x से हम प्रिंट कर रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे रीड करें सॉल्यूशन स्टेप्स अगर मेंशन है तो, क्योंकि जब हम इसे समझेंगे तभी तो हम ऐसे प्रॉब्लम्स में लिखेंगे इसी तरीके से। तो अगर आप देखो हमने कहा x को प्रिंट कर रहे हैं, x से ही प्रिंट कर रहे हैं, तो x को हमने सबसे पहले क्या सेट कर दिया? माइनस n इंटू
n, माइनस n इंटू n। अब पॉइंट आया कि मैं काउंट कर रहा हूं, मतलब मैंने आपसे कहा था ना कितना पर इंस्टेंस फॉर वैल्यू ऑफ n कितनी वैल्यूज को क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है पर इटरेशन, तो ये वो टर्म्स क्या 3n+1 आ रही थी? नहीं, 3n आ रही थी। पर इन्हें 3n+1 में लिख के क्यों दिया? उनने उसको एक्सक्लूसिव कर लिया, क्योंकि हम यहाँ कोड तो है नहीं ना, ये कोड नहीं है ना, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन कुछ नहीं लिखते ना हम लूप में ये नहीं दे हाँ रहे हैं। अब यहाँ समझो, अगर 0 से 3n+1 करोगे तो 3n होंगी, और 1 से करोगे तो कितनी हो जाएंगी, ये थ्री आपको समझना है। 3n-1। हाँ, तो अगर आपके पास ऑप्शन में ये, अगर आप समझो 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक इसी से कट जाते हैं ना, 4 ऑप्शंस में से। हाँ आप ये समझ जाते कि पहली टर्म, मान लो इसमें -n×n है, ये सब में था, चारों ऑप्शन में -n×n है, देखो सारे ऑप्शन में है -n×n। तो आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव, या जब प्रोग्राम भी करते हो ना, देखो आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं सब हैं, उसमें आपको क्या देखना होता है, डिफरेंस कहाँ से शुरू हुआ। दोनों स्टेप्स सब में कॉमन थी, मतलब उन्होंने इस बारे में कोई वो नहीं आपको कंफ्यूज किया कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, -n²। तो हमें अगला देखना था काउंट, मतलब कितनी टर्म्स हैं। तो पहले ऑप्शन में मैंने कहा ना, उसमें लिखी थी पहले ऑप्शन में अपनी 1 से 3n+1, पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में ये थी 1 से 3n+1, पर ऊपर और नीचे में अंतर देखो। 1 से सॉरी, ऑप्शन 1 में देखो 1 से 3n+1 पर नीचे x+2i-1। दूसरे ऑप्शन में 1 से 3n+1 पर नीचे क्या है, x+2i। सो दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक ऑप्शन कहेगा 1 से 3n+1, ऑप्शन 2 बोलेगा 0 से 3n+1। एक ऑप्शन बोलेगा x+2i-1 और दूसरा ऑप्शन बोलेगा x+2i। सो अपन इसे कंक्लूड करें, अगर अपन इसे कंक्लूड करें तो आप ये देखो, अगर 1 से 3n+1 एक्सक्लूसिव जा रहा हूं तो 1 से 3n हो जाती है ना मेरी 3n टर्म, 1 से 3n हो जाती है ना मेरी 3n+1 3n टर्म्स। उमर फिर यस आप सर। 0 से 3n+1 क्यों लिखा? 0 से जब 3n+1 गिनोगे तो मालूम है टर्म कितनी हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली 3n+1 हो जाएंगे, अगर 0 से चलोगे तो। यस सर। ठीक है, तो आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 से 3n+1, नंबर 1। ठीक है, क्योंकि 1 से 3n+1 जब करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 3n। अब 3n। हो जाएंगी, और 3n तो हमें यहीं से दिख रहा है। ठीक है, अब आओ दूसरी बात, x की वैल्यू क्या होगी? प्रिंट तो x कर रहे हो ना, ये तो काउंटिंग थी। x प्लस हाँ, हाँ यस सर, x+2i-1 होगा क्योंकि हम ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं x में। अब देखो i, इसे i किसे बोला था, ऊपर, और i स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है वन तो हाँ, 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 वैल्यू, पहली वैल्यू के लिए देखो, पहली वैल्यू के लिए 1 आएगी, 2 - 1 1, तो x+1, 0 यस + 1, सर। तो 0 0 + की वैल्यू क्या आ गई, 0 के लिए -1 आएगा, लेकिन अभी मैंने i से किया है, हाँ, 1 से किया है सॉरी। और अगर मैं 0 से करूं, तो हमने देखा है कि 0 से करेंगे तो -1 आएगा फर्स्ट के लिए, सॉरी 0 वाले केस के लिए। अदरवाइज ये कैंसिल, गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इज इट सो? देखो, ये आपके सामने है, और चारों ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। पॉइंट यही समझने का है, अगेन क्योंकि ये मैं कल बता चुका हूं, इसको आप समझो। आपके पास चारों ऑप्शन है, और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, यही तो करना है, वापस जाओ और वैल्यू पुट करके देखो कि अगर मैं क्या करूं। जैसे मैंने टेबल बनाई थी आपके लिए, आई क्या आ रहा है, आई हमने बोला 1 से 3n+1 आ रहा है, तो एक कॉलम में एक वैल्यू क्या बना लो, आई, और दूसरा कॉलम में क्या वैल्यू बना लो, एक्स। अब आई की वैल्यू पुट करो और उसके करस्पॉन्डिंग क्या देखो, एक्स की वैल्यू देखो फॉर ईच इटरेशन।
यही तो आपको पिछली 3 क्लास से प्रैक्टिस करा रहे हैं कि पैटर्न के साथ वैल्यू कैसे निकालनी है। दिस वे यू हैव टू डील विद दैट। आपके पास इनपुट भी मेंशन है, आपके पास आउटपुट भी है। अब आपको सिर्फ 2 जगह सेट करना है, 1 से के 0 से, और x प्लस 2i माइनस 1 के x प्लस 2i। तो आई एम लीविंग इट टू यू पीपल। ये बहुत कंपेरेटिवली बहुत सिंपलर प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास 2 ही जगह तो चेंजेस हैं, सिर्फ 2 ही जगह चेंजेस हैं, सो दैट यू हैव टू डू। तो ये वैल्यू निकाल के जब तक हम नहीं करेंगे ना बाय आवर ओन, विल नॉट एबल टू ग्रास्प द थिंग्स। तो ये सेम रिपीटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई एम लीविंग इट टू यू पीपल। यू कैन सी दिस इज द ऑप्शन सेकंड, दिस इज ऑप्शन थर्ड, दिस इज ऑप्शन फोर्थ। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, वीडियो को आप पीछे करके देख के, ये जब मैं अपलोड कर दूंगा तो यू कैन पॉज इट ओवर हियर एंड ट्राई टू एक्सप्लोर इट, ओके। क्योंकि अपनी दूसरी प्रॉब्लम पे मूव कर रहे हैं अब सेम वे, है ना। तो जो दूसरी प्रॉब्लम है वो भी हमने कल डिस्कस करी थी, और हमने कल क्या कहा था, इसको हमने सॉल्व कर लिया था। इसमें सॉल्यूशन में क्या लॉजिक था, कौन रिपीट करेगा? नमन, इसका लॉजिक क्या था, कल हमने डिस्कस किया था। सर जैसे जैसे हम लोग व्हाइट रेड ब्लॉक का देख रहे हैं, जैसे जैसे मतलब x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 2 है, दोनों में सेम आ रहा है। सेकंड केस में देखें, अगर ऑड है तो हम लोग का ब्लू मतलब ब्लू ऊपर है, अगर इवन है, हाँ सॉरी सर, इवन है तो सर ब्लू है ऊपर, चलो, और ऑड है यहाँ तो हम ब्लैंक से लोग हमें का समझ में आना था, ठीक है, बिल्कुल सही है सिंटू। इवन और ऑड में क्या अंतर आया था और ये हमने देखा था। अब मैं आपको इसके लिए, इसी पैटर्न के लिए एल्गोरिथम दे रहा हूँ, इसी पैटर्न के लिए एल्गोरिथम दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया ताकि आप लोग थोड़ा एक साथ देख पाओ दोनों चीजों को। ओके, विजिबल है ना दोनों चीजें। अब ये एल्गोरिथम में मैंने बीच की लाइन गायब कर रखी है, ये बीच की लाइन गायब है। इसमें 2 लाइन मैंने बीच में से ये लाइन गायब कर दी, बस एक। उससे पहले आप इसको रीड करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो, इस एल्गोरिथम को, इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करो। अगेन देखें, गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर n, मैंने कहा था ना आज का हमारा पर्पस है हाउ टू रीड। स्टार्ट एट द स्क्वायर n इज इक्वल टू 0, स्टार्ट एट द स्क्वायर n इज इक्वल टू 0, n कॉमा 0, सॉरी, यहाँ n कॉमा 0 का क्या मतलब होगा, एनीबडी? सर x की वैल्यू। x, इसको वैसे मैंने कहा था ना, बिल्कुल इसको ये मानो कि ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस और वर्टिकल y एक्सिस। अब अगर मैं इंस्टेंस देख रहा हूं ये n इज इक्वल टू 0, तो ये 0 कॉमा 0 ये पहला वाला हो रहा है, समझ रहे हो। मैं रीड करने का तरीका सिखा रहा हूं बेटा, इसको ध्यान से समझना, हाउ टू रीड दिस, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो हमने गिवन है नॉन नेगेटिव इंटीजर n, हर एल्गोरिथम पिछली 4-5 प्रॉब्लम्स में हमने देखा सिर्फ n गिवन था और उसके हिसाब से पैटर्न देखना था। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 0, सॉरी वी आर स्टार्टिंग एट द स्क्वायर n कॉमा 0, मतलब x वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बात हो रही है, एंड कलर इट रेड। तो मतलब पहली बार रेड कैसा आ रहा है इस पे बताया जा रहा है, मतलब हम कैसा भरेंगे इसको पता है। मैंने ये 0 0 लिया ना पहले, तुरंत हाईएस्ट लो n इज इक्वल टू 5। तो अगर मैंने कहा n की वैल्यू 5 है तो हमने क्या कलर किया, रेड कलर किया 5,0। तो ये देखो पहला ब्लॉक खाली, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा नहीं है, इसको हमने क्या बोला था 0 0। तो जब n की वैल्यू 5 दी तो मुझे कहां पे आना है 5,0, और उसको क्या कलर कर देना है, रेड। गेटिंग इट, गेटिंग इट और नॉट? यस सर। ये बात तो समझ में आ गई जो मैंने अभी बताई। मान लो n इज इक्वल टू 5 है, तो हम यहाँ आ गए ना। अब हमको क्या करना है, पहले तो रेड पूरा पैटर्न जाएगा ना। अब इसने क्या है, हमने देखो अगर इसके बाद 5 के बाद हम इस पे आए ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी इसके पिछले वाले की,
अगर ये 5,0 था तो ये क्या है, 4,1 है कि नहीं है? अगर ये स्क्वायर की नंबर जो है, ग्रिड का नंबर 5,0 है, तो ये एक ऊपर चला गया ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और एक पहले चला गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर मैं इस पूरी सीरीज पैटर्न को पढ़ूं तो ये होगा 50413243 यही होगा ना, और 54, और ये क्या हो जाएगा लाइक दिस, ये सर होगा 5 हाँ 50 था, ये 41 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 221 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 06, क्योंकि ये सारी 5 होगी क्योंकि हम 0 को मिस कर रहे हैं। ये हमेशा बॉर्डर लाइन प्रॉब्लम देता है। और ये अगर हम देखें तो हमने ये रिवर्स करा तो हमने क्या लिखा, देखो मूव 1 स्क्वायर लेफ्ट, तो जब मैं 5 से मुझे अगले पे जाना है 4 पे, मुझे लेफ्ट जाना है, मुझे डिक्रीमेंट करना है, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिक्रीमेंट। तो मूव 1 स्क्वायर लेफ्ट एंड 1 स्क्वायर अप, क्योंकि अगला जाना है। तो अगर मुझे ये बात कैसे समझ में आई, मुझे समझ में आई कि मुझे 5,0 से 4,1 पे जाना है, मतलब मूव लेफ्ट, क्योंकि 5 से 4 आ गए, और 0 से 1 आ गए, मतलब मूव अप। तो देखो मूव 1 स्क्वायर लेफ्ट एंड 1 स्क्वायर अप, और इसको भी अभी क्या मार्क किया है हमने, कलर द स्क्वायर रेड। व्हाट वी हैव डन, वी हैव कलर द स्क्वायर रेड। इन दिस वे कब तक करना है पर ये 0 to n, देखो स्टार्ट एट द स्क्वायर 0 n,0, और फिर काउंट क्या करो 0 से n एक्सक्लूसिव अगेन, मतलब 0 से काउंट कर रहा हूं, यहां 0 था, फिर 1 काउंट करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, और क्या लिखा है एक्सक्लूसिव n, लास्ट वाले को छोड़ दो, n को नहीं कंसीडर करना है, मतलब n-1 तक करना है। और हर इसके लिए क्या करना है, एक स्क्वायर नीचे जाओ, मतलब 5 बार चलना है, ये 5 था ना, तो 1 यहां से शुरू करा, तो 1 2 3 4 5, तो 0 से n चलूंगा तो 5 चलेगा, अगर मैं n को काउंट कर लूंगा 0 से n तो वो 6 हो जाएगा, इसलिए क्या लिखा है एक्सक्लूसिव। ये जो हम चीजें दे रहे हैं ना इटरेशन में, ये हमारे कंडीशंस में आएंगे कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो हमने कहा कि n से शुरू करा, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। देखो हर एल्गोरिथम में मैंने क्या बोला, कितनी बार चलेगा और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये अगर अप्रोच पकड़ोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू राइट, बिकॉज यू आर, इफ वंस यू आर नॉट एबल टू राइट द एल्गोरिथम, यू विल नॉट एबल टू राइट द कोड। और ये जब हमने सॉल्व करी मैथमेटिक्स, अब हम मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम की तरफ जा रहे हैं, तो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लगने लगती हैं। अभी तक हम जस्ट उसे एज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम करके कर रहे थे, तो वो चीजें आसान लगती हैं। गेटिंग इट, अभी समझ में आया यहाँ? अब अगर ये बात जो भी करी वो तो केवल किसको लेके करी, रेड को लेके, है ना। देखो ये लूप के अंदर नेस्टिंग समझना होगी। अब आओ स्क्वायर की बात करके हमें ये देखना होगा कि कब ग्रीन और कब देखना होगा ब्लू, और ग्रीन जो है वो कहां से शुरू होगा। हमेशा देखो रेड के बाद शुरू क्या हो रहा है, ग्रीन। हर इसमें पैटर्न में दिख रहा है, जहां से अगर मैंने रेड शुरू करा था इधर से, तो रेड के बाद वाली वैल्यू में ग्रीन है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। अगर मैंने 5,0 पे रेड रखा था, तो देखो रेड के बाद 6,0 पे ग्रीन है। अगर ये 4,0 पे रेड है तो 5,0 पे ग्रीन है। अगर ये 3,0 पे रेड है तो 4,0 पे ग्रीन है। अगर ये 2,0 पे रेड है तो 3,0 पे ग्रीन है। कल हमने इवन ऑड देखा था और देखा था कहां से शुरू कहां पे खत्म। हमने ये चीज मिस कर दी कि कहां पे शुरू, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे थे नीचे। अगर हम इसे नीचे से देखते तो हर बार देखते कि रेड खत्म हुआ तो ग्रीन स्टार्ट हुआ। तो शायद हमारी कल की अप्रोच सही नहीं थी, पर क्योंकि 4 ऑप्शन थे तो मैच हो गया और हमने उस पैटर्न को पकड़ लिया, क्योंकि नंबर ज्यादा कहाँ आ रहे हैं और कम कहाँ। एक्चुअली अगर हम ग्रीन से स्टार्ट करते, देखो कल हमने क्या मिस्टेक करी, अगर हम ग्रीन से स्टार्ट करते तो ये सीधा पैटर्न था कि रेड जहां पे शुरू हो रहा है उसके बाद ग्रीन होना चाहिए और फिर पैटर्न आएगा। यही रिवर्स पैटर्न सेम है। देखो अभी हमने जो पैटर्न पकड़ा वो कैसा पकड़ा, हमने यहां से शुरू करके रेड बनाया,
जैसे ही हम ग्रीन शुरू करके बना सकते थे, ये ज्यादा आसान हो जाता। तो आज हम ज्यादा बेहतर अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, पर उसमें एक ही चीज और बची, स्टार्ट तो ग्रीन से ही होना है। अब अगर इवन है तो अल्टरनेटिव, चाहे ऑड है, अल्टरनेटिव अब क्या आएंगे, ग्रीन और रेड। अगर ग्रीन से स्टार्ट हुआ तो अगला तो ग्रीन आना, ब्लू आना है। देख लो कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी ऑप्शन देख लो, इंस्टांस स्टार्ट ग्रीन से हुआ, एंड रेड ब्लू पे, ग्रीन ब्लू ग्रीन, मतलब इवन और ऑड देख लो। और यही पैटर्न जैसा रेड के लिए किया था, +1 करके सेम पैटर्न रिपीट कर दो किसके लिए, ग्रीन और ब्लू के लिए। तो अब मैंने आपको ये जो है ना, इसको रीड करके समझाया। इसने क्या बोला, स्टार्ट अगेन एट द स्क्वायर n+1, 0। जैसे हमने रेड को अगर समझ लिया था n,0 से शुरू कर रहे हो, तो इसे कहां से शुरू करना है, n+1, 0, और इसे क्या कर दिया, रेड। अब मैंने ये जो लाइन बीच में नई लिखी है ना, ऊपर लिखी हुई लाइन है, उसके बाद मुझे यहाँ जो ओमिटेड लाइन लिखी है ना मैंने, आप यू जस्ट ट्राई टू राइट दैट। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स फॉर दैट, और इवन आई एम गिविंग यू दीज ऑप्शंस। ये देख लो, ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको उस पर फिट करना है कि कहां से कहां काउंट करना है, और बस एक ही चीज, कहां से कहां काउंट करना है। नाउ कम टू दिस, और इस ऊपर की लिखी हुई लाइन से देख के बताओ कि हम मूव 1 स्क्वायर लेफ्ट, और ये जो काउंट लिखा था ना हमने ऊपर, बस इस लाइन की बात कर रहे हैं अपन। जैसे ऊपर देख लो, स्टार्ट एट द स्क्वायर n,0 एंड कलर इट रेड, काउंट फ्रॉम 0 to n एक्सक्लूसिव एंड फॉर ईच नंबर दैट यू काउंट, ये आई लाइन। तो अब यही चीज आपको यहां ब्लू और ग्रीन के लिए लिखनी है। ये समझ में आ रहा है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, कि डिफिकल्ट लग रहा है ये? यस, जो अभी मैंने बात बताई वो समझ में आई किसके आई? मोहित, समझ में आई बात? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को तो देखो, पहले के क्वेश्चन से आसान मानो। अगर आपके सामने एल्गोरिथम लिखी है, बस एक ही लाइन तो मिसिंग है उसमें। सर इसमें 0 to n+1 जाएंगे ना? क्यों? आप सर देखो, जो ग्रीन से, फिट करो उसको, फिट, हाँ एक मिनट, उसको फिट करो, जो आप कहना चाह रहे हो उसको फिट करो, कहां से कहां तक मूव करना है। ओके, ये अब मैंने ऑप्शन भी सामने रख दिए, एल्गोरिथम भी सामने रख दी, अब ऑप्शन भी सामने है आपके। पैटर्न भी सामने है। उमर, n+1 यस क्यों? सर। वाई n+1 एक्सक्लूसिव? सर क्योंकि जो रेड ब्लॉक्स हैं वो अगर n से प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें एक इक्वेशन फॉलो हो रही है, x+y=n। सो सपोज हम एक ब्लॉक आगे मूव करके सेम पैटर्न बनाते हैं तो वो उसमें सिर्फ एक ब्लॉक एक्स्ट्रा प्रिंट होगा, इस वजह अच्छा से चलो, चारों उसमें। ऑप्शंस को देखो, 0 से स्टार्ट करेंगे कि काउंट 1 से स्टार्ट करेंगे?
अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n+1 तक जाएंगे एक्सक्लूसिव। तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है, छोड़ दो उसे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, चार ऑप्शन अच्छा देख के तो हाँ, चार ऑप्शन हाँ देख के तो ये सेकंड यस, वाला करेक्ट। सेकंड। नहीं जस्ट अ मिनट सर। ये बस यही बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर इन चार ऑप्शंस को भी देख लेते ना, इन चारों ऑप्शंस में भी एक ही चीज समझनी थी कि अगर मेरे नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ही मैच हो गए तो देखो चारों ऑप्शन में अलग अलग है, तो आप बहुत सारी चीज से बच जाते, क्योंकि और कोई अंतर ही नहीं है। केवल कितने की बात कर रहा है कि लूप कितना रन करना है, बाकी तो लॉजिक दे दिया उसने आपसे। यहाँ ऊपर लिखा था काउंट फ्रॉम 0 to n एक्सक्लूसिव, क्योंकि हमने देखा था लास्ट वाला छोड़े, n-1 चलाना था। अप और डाउन तो उसने बता दिया था हमें। यहां पे भी उसने देखो नीचे वाली लाइन में मूव 1 स्क्वायर लेफ्ट एंड 1 स्क्वायर अप, अगर इवन है तो ब्लू करो और अदरवाइज करो ग्रीन। अब इसमें बात समझना, इवन ऑड के लिए इसने क्या करा है, पहला हमेशा ऑड होगा ना, तो स्टार्ट कहां से हो रहा हाँ है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ग्रीन से। नीचे वाला, है ना, 1, मूव 1। अगर वो ग्रीन से हो रहा है मतलब वो 1 है, और वो क्या है, ऑड और है ना। तो 0 से स्टार्ट हुआ था, पर पहली चीज जैसे ही अप करी तो वैल्यू 1 हुई। स्टार्ट अगेन एट n+1 एंड कलर इट ग्रीन, तो n अगर लिया है हमने 5 तो वो 6 हो गया, 6 हो गया, यस स्टार्टिंग फ्रॉम n+1 to 0। सो यू हैव टू चेक दीज टू थिंग्स ओनली। तो मेरा पॉइंट क्या है, आज की क्लास में बताने का बात ये था कि देखो जब इसको उल्टा करा तो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड दीज पैटर्न, टू रीड द कोड। अनलेस यू एबल टू रीड द कोड प्रॉपरली, तो दूसरे का कोड भी समझना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो हम हमारा जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, आई थॉट ऑफ, आज मैंने सोचा था कुछ अपन कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक्स ऑफ सी सोचा था, पर कॉन्सेप्ट के साथ फिर रह जाती है चीज। तो पॉइंट ये है कि अब हमें जो करना है वो ये है कि हम इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज का हमारा पर्पस क्या होगा, हम एक्सरसाइज में करेंगे ये कि हम बीच की लाइन मिसिंग कर देंगे गिवन एल्गोरिथम में। आपको वो लाइन देखनी होगी एल्गोरिथम की। दूसरा तरीका हमारा हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स जो हम कर रहे थे, और तीसरा होगा कि आउटपुट क्या है। तो आउटपुट क्या है, अगर पूरा कोड फ्रेगमेंट दिया है, रादर देन गिविंग विजुलाइजिंग द थिंग्स के पैटर्न दिखा रहा था, अब हम इस कोड की फॉर्म में समझना चाहेंगे, एल्गोरिथम की फॉर्म में, ताकि आप उसको एल्गोरिथम को रन कर पाओ, है ना। दूसरा, अगर हम कोई स्टेटमेंट बीच में मिसिंग, जैसे अभी आज जो क्वेश्चन दिया, तो इस क्वेश्चन में ये जो एक लाइन मिसिंग है, उससे आपका पैटर्न आंसर से मैच करो और वो लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। दिस वे यू विल एबल टू राइट द राइट वे टू राइट द एल्गोरिथम, है ना। तो आपको समझना होगा कि इस प्रॉब्लम के लिए हमने कैसे लिखा। द सेम वे विल रिपीट फिर फॉर अदर प्रॉब्लम आल्सो। ओके, कुछ समझ में आया आज की क्लास में? जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट लगेंगी, है ना। सो ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हमें क्वेश्चंस डेफिनेटली थोड़े से कंपैरेटिवली टफर आएंगे, तभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारी प्रॉपर होगी। ओके, सो टाइम टाइम अप। सो विल सी इन नेक्स्ट क्लास। आज आज अटेंडेंस इतनी कम क्यों है? इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? ओके, गुड डे, है ना, यू ऑल कैन लीव। थैंक यू। थैंक यू बेटा।